कौन से पॉइंट पे थे? ये सेकंड वाले ना। देखो आपको लिखना कैसे है इसमें। यस मैम। पहले लिखना है बिल्डिंग इज नॉन फाइनेंशियल एसेट, कॉमा इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन because the capital asset is held for less than 36 months. See, short term capital gain because the capital asset is held for less than 36 months. अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इट इज नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, कॉमा it is long term capital gain because capital asset is held for more than 36 months. This is the way to answer. Okay. Third, Mr. Arvind acquires shares. Now shares are my non financial or financial assets? फाइनेंशियल एसेट्स मैम। Okay. Now he acquires means purchase. Acquires shares on 1st May 2016 and sells them on 1st March 2017. Now you tell me, is it which 36 months we have to consider or 12 months we have to consider? 12 month। Yes. So is the holding period is less than 12 months or more than 12 months? मैम लेस देन 12 मंथ। Yes, because 1st May 2016 is a purchasing date and sold date is 1st March 2017. Okay, 1 month is less than 12 months. Okay, there are 11 months, no? If you calculate, there are 11 months, no? See, calculate, there are 11 months. Am I right? Yes, is it correct? चलो आगे बढ़ते हैं। 10 मंथ्स हो रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि 1st मार्च को बेच दिया ना, मतलब फेब्रुअरी तक होल्ड किया। सो मई से फेब्रुअरी तक कितने मंथ्स होते हैं? 10 मंथ्स। सो इट इज लेस देन 12 मंथ्स, इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या है ये? देखो थर्ड वाला आंसर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज द शेयर्स वर हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स। अच्छा, नेक्स्ट आंसर करिए। मिस्टर अरविंद अक्वायर शेयर्स ऑफ यूटीआई ऑन 1st May 2012 and sells them on 1st April 2017. He purchased it on 1st May 2012 and sold it on 1st April 2017. So what should be the answer? Yes. Am I audible? Chalo, come on, give me the answer. अगर 1st May 2012 को खरीदा एंड 1st April 2017 को बेचा, और क्या खरीदा बेचा? शेयर्स। शेयर्स हमारी कौन सी एसेट होती है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स मैम। वेरी गुड, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल एसेट को अगर मैंने 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया, होल्डिंग पीरियड देखो ना ज्यादा है 12 मंथ से, आई हेल्ड इट फॉर, I mean it was held it for more than 12 months because I purchased it on May 2012, sold it on April 2017. So almost 5 years, no? 5 years. The holding यस मैम। period is 5 years. It is more than 12 months. If it is more than 12 months, then the answer will be लॉन्ग टर्म। yes, long term capital gain. Okay, such type of questions can also be asked for, if there are 4 points, question can be asked for 8 marks. If there are 5 points, the question can be asked for 10 marks. Each will carry 2 marks. Here 2 marks because you have to state the reason also, na? Okay. समझ आ रहा है चैप्टर की नहीं? हाँ मैम समझ रहा। Yes. Okay. So I think enough for the day. We will understand the format of short term. See, there is a different format of short term capital gain and there is a different format for long term capital gain. So we will understand, of course, but I will have to start it in the next lecture. And uh, let me see, first you all have to revise up to this point, up to this. Yes.
पेज नंबर 159 तक आप रिवाइज करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेट करवाऊंगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड वी विल डू अ फ्यू रिलेटेड सम्स ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोथ। यस मैम। वैसे भी आपका लेक्चर नहीं है ना कल, तो एक दो एग्जाम्पल्स और पूछ लेती हूँ मैं आपसे, ठीक है? देखो, अगर मैं यहाँ ये पूरा सेंटेंस सेम रखूं, ये पूरा सेंटेंस मैं सेम रखूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं मिस्टर अरविंद परचेज्ड अ ज्वेलरी on 1st January 2020 and sells it on 1st January 2017, तो मुझे बताइए ज्वेलरी कौन सा एसेट होता है, फाइनेंशियल की नॉन नॉन फाइनेंशियल? परफॉर्मिंग एसेट। हाँ जी, फिर से बोलिए। नॉन फाइनेंशियल एसेट। वेरी गुड, नॉन फाइनेंशियल एसेट। मैंने परचेज किया 2010 जनवरी और बेचा 2017 जनवरी, तो मुझे बताएंगे लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? मैम लॉन्ग टर्म। यस। Why it is long term? Because the holding period was for more than 36 months. यस ओके, मैम। चलो अब मैं इसी एग्जाम्पल को डेट्स चेंज करती हूँ। मैं डेट्स फर्स्ट एग्जाम्पल में डेट चेंज कर रही हूँ। मिस्टर अरविंद परचेज द बिल्डिंग ऑन, नहीं, बिल्डिंग को भी चेंज करते हैं। मिस्टर अरविंद परचेज्ड लैंड, मिस्टर अरविंद परचेज्ड अ लैंड ऑन 1st January 2010 and sells it on 1st February 2012. 1st January 2010 is same purchase date. Sells it on 1st February 2012. And he is purchasing a land. So tell me, land is financial asset or non-financial asset? नॉन फाइनेंशियल एसेट्स मैम। Very good, non-financial asset. If it is non-financial asset, the holding period has to be checked with 36 months or 12 months. 36 मंथ। Very good. So if he is purchasing on 1st January 2020 and selling it on 1st February 2012, so how many months, how many years? 12 सॉरी 2 years मैम। Yes, almost 2 years, almost. Okay, यस मैम ऑलमोस्ट। around 2 years. So you can say around 2 years. If it is less than 36 months, it should be, शॉर्ट टर्म। yes. If it is more than 36 months, it should be, लॉन्ग टर्म। yes. So now this case is long term or short term? शॉर्ट टर्म मैम। Very good, because the land was purchased on 1st January 2010 and sold on 1st February 2012. Because the holding period was less than, very good Jaya, you are answering very good. The holding period was less than 36 months. That means the holding period is for 2 years. Okay, therefore it is short term capital gain. You need to answer short term capital gain. Okay, the whole answer has to be written. Okay, next, if I tell you Mr. Arvind purchased debentures on 1st January 2010 and sells it on 1st January 2017, the whole statement is same, first statement, only instead of building I'm writing down debentures. So tell me, debentures is financial or non-financial? फाइनेंशियल एसेट्स मैम। Very good. So while calculating financial, you have to calculate it with 12 months or 36 months. 12 months। Okay. So now he has purchased the debentures on 1st January 2010 and sells it on 1st January 2017. How many years he is holding for? 7 months 7 years। 7 years. Is more than 12 months or less than 12 months? मोर देन 12 months। Very good. So debentures, if it is more than 12 months, then it is लॉन्ग टर्म। long-term लॉन्ग टर्म capital gain. कैपिटल। Now that means because you are able to answer, I am also assured that you guys are understanding everything. That's it. इससे ज्यादा मतलब कुछ है ही नहीं। अगर आपने इतना आंसर कर लिया ना, मतलब आपको सब समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। समझ में आया? शॉर्ट टर्म को हमको
सॉरी फाइनेंशियल एसेट्स को हमको 12 मंथ से कंपेयर करना है और जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है उन्हें हमें 36 मंथ से कंपेयर करना है। अब हमने ये भी समझ लिया विच आर फाइनेंशियल एसेट्स एंड विच आर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। अब हमने ये भी समझ लिया ट्रांसफर क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी होती है। इफ आई आस्क यू ज्वेलरी, इज इट कैपिटल एसेट्स? Yes, ma'am. वेरी गुड। हाउस प्रॉपर्टी, यस और नो, कैपिटल एसेट है? Yes, ma'am. वेरी गुड। पर्सनल कार? Non capital asset. Very good. Not a capital asset. Okay. Not a capital asset. Okay. If I ask you factory building. Factory building. Ma'am, capital asset. Yes, because it is immovable. All immovable ma'am. assets are capital assets. Immovable है ना, बिल्डिंग को उठाकर थोड़ी कहीं पे लेके जा सकते हैं, जैसे घर को Yes, उठा ma'am. के नहीं लेके जा सकते, ठीक है? ओके, इफ आई आस्क यू डिबेंचर्स, कैपिटल एसेट Ma'am, है कि capital नहीं asset. है? Yes, ma'am. यस, कैपिटल एसेट है। ओके, शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी? Capital asset. ओके, 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 डिबेंचर्स ऑफ टाटा लिमिटेड? Capital asset. यस, कैपिटल एसेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। मतलब आप ये भी समझ गए कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। मतलब आज का लेक्चर अगर आपने समझ लिया ना, तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपने समझ लिए, और किस तरीके की मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं वो भी आपने समझ लिए। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके हाथ में 10 मार्क, मतलब एक और पॉइंट ऐड हो गई तो ठीक है, 10 मार्क तो आपको देखो कितना इजीली मिल जाए। कितना इजी चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत आपको मतलब ऐसे नहीं फील होगा कि ये चैप्टर बोर हो रहा है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मेट सीखेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, और उसके बाद हम आई मीन आपने अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 2 सम्स भी कर लिए ना, फिर आप बोलोगे कि बाकी के सम्स हम कर लेंगे, इतना ईजी होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मैं आपको 4-5 सम्स करवाऊंगी, सो दैट यू आर आई मीन फर्म ऑन दो सम्स, क्लियर हो जाएंगे आपको, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपके वो सम्स, ठीक है? कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप। Yes, ओके, ma'am. सो नेक्स्ट लेक्चर में Yes. करते हैं। ओके, Yes, ma'am. Bye, ma'am. ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, प्लीज कीप रिवाइजिंग। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, अब तो कल से आपका हाउस प्रॉपर्टी सोनी मैडम शुरू करेंगे, तो तब थोड़ी लंबी ब्रेक आ जाएगी कैपिटल गेन के लिए, तो आप रिवाइज करते रहिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए रिवीजन के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर भी होगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको ईजी हो जाएगा। मेरे लिए इजी होगा समझाना, बट आपको समझना इजी तब होगा जब आप रिवीजन करके रखेंगे। ओके, प्लीज रिवाइज करते रहिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते Yes, हैं। ma'am. ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, Bye, ma'am. बाय।